Hello, dear aspirants, and welcome to EduTap. So, guys, this is part 25 of your top 1000 questions for UPSC CSET comprehension practice. And we are going to practice a few passages here in this session. So, don't forget to like the session, don't forget to subscribe to the video if you're here for the first time. So before we go any further, guys, let me show you how you can enroll yourself in our courses. You just have to visit Google and type edutab.in. So guys, as you type edutab.in, you will land on our homepage. Just give me a second. So as you type edutab.in, you will land on our homepage, and all your courses are available to you on your home screen itself. So you'll see regulatory body exams, other exams, and then you'll see at the bottom CSAT courses. So you click on this and you will be redirected to your CSAT part. Now guys, you have special live workshop available. You can subscribe to that. And guys, when you scroll down, you'll see the test series for CSAT for 2026, which has solved PYQs, chapter-wise test, sectional test, and full-length test, and then you have your master course. Now, this is a one-stop solution for all your needs, guys. This comprises of your live classes for your CSAT part, which are going on right now. Then your recorded concept classes, chapter-wise test, sectional test, full-length test, and mock tests as well. So this is a one-stop solution for your CSAT preparation. And then you have your demo lessons available to you as well. You can watch the quality of the content that we provide to you, then make your decision. So guys, come join us. Streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. Now, let's begin with the session, guys. So this was the homework passage that I gave you last week. So you had to find a logical and rational inference. So what is an inference? A logical key fact that is taken from the passage. So let's start with the passage, guys. Bank credit to the industrial sector has started shrinking. Its decline has been a serious concern as credit growth is essential to revive investment. That's true. Because अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी बैंक से या लोन नहीं मिलेगा तो फिर वो आगे ग्रो नहीं कर सकता. So उसने बोला कि industrial sector has started shrinking and its decline has been a serious concern as credit growth is essential to revive investment. The problem's origins lie in the incomplete reforms of the last 25 years. An institutional change that should have followed the 1991 reform should have been setting up of a resolution corporation for banks. In a market economy with booms and busts, banks should be allowed to set up and to fail. Today, we cannot shut down banks because there is no proper system. There is no proper system to shut them down. Weak, loss-making banks continue to need more capital. So what is the inference? के ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं ये सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं और बैंक्स को ज़रूरत है एक रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन की. तो क्या इन्फ्लुएंस है गाइस? इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज नॉट एबल टू हेल्प द कंट्री इन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. इट्स नॉट दैट इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज नॉट एबल टू हेल्प द इकोनॉमी. इट्स दैट द पुअर बैंक शुड आर नॉट एबल टू are not able to I think they're not able to close because of the reforms that we have made. Second, economic reforms that started in 1991 have not helped in improving the economy to expected levels. Okay. India lacks the institutional mechanism to deal with failure of banks. Yes. Encouraging the foreign FDI in our industrial sector is a good, no, we are not talking about FDI here. So, and we are not saying that economic reforms have not helped the economy. We are saying that there should have been better outcomes. So, the correct answer is option number C. India lacks the institutional mechanism to deal with the failure of banks. That's what the passage talks about and that's what the inference of the passage is. चले guys, कुछ नए passages discuss करते हैं आज and let's try to see what their solution could be. So, what is the most logical and crucial message conveyed by the passage? So, let's read up the passage, guys. Our urban bodies cannot possibly ensure sustainable delivery of water in our cities unless financing mechanisms are put in place. कि हमारी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो पानी सप्लाई नहीं कर सकती unless फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स शुरू किए जाएं. मतलब उनको पैसा जब तक नहीं मिलेगा वो कैसे पानी डिलीवर करेंगे यार. Water delivery requires heavy investment in collecting it from a natural source, treating it to make it potable, and laying a distribution network of pipes for delivery to the users. That's true. It also requires investment in sewerage, infrastructure, and sewage treatment plants,
so that the sewers can carry the wastewater to these plants to ensure that no untreated sewage is discharged back into natural water bodies. Exactly. तो भाई इस सब के लिए पैसे लगता है, इस सब में फाइनेंसिंग की जरूरत होती है, ये कह रहा है वो कि बिना पैसे के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये काम नहीं कर सकती। तो उसने एंड में क्या बोला, इफ आर सिटीज वर रिच इनफ टू मीट द एंटायर कॉस्ट, वाटर कुड बी डिलीवर्ड फ्री, बट दे आर नॉट। उसने वही बोला कि अगर हमारे शहर इतने अमीर होते कि ये सारी इंटायर कॉस्ट जो पाइपलाइन की है, पोर्टेबल वाटर अवेलेबल कराना, कलेक्ट करना नेचुरल रिसोर्स है, फिर उसको रिसाइकल करना, अगर ये सब सिटीज़ अगर अफोर्ड कर पाती तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फ्री में दे देती पानी, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए पैसा लगता है। तो उसने क्या मैसेज दिया है इसमें, अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस। यस, अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटी। ऐसा नहीं है कि वो पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रही, पॉइंट ये था कि उनको फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये दिस इज रॉन्ग। वाटर शॉर्टेज इन आर सिटीज इज ए पेरेनियल प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व। कि ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो सकती, नहीं, सॉल्व तो हो रही है, पानी मिल रहा है, लेकिन पैसे लग रहे हैं उसके। एंड लास्ट, इन व्यू ऑफ द वाटर क्राइसिस इन आर सिटीज देयर इज एन अर्जेंट नीड टू लिमिट द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज बाय अडॉप्टिंग अ अपर लिमिट। कि यार लिमिट कर दो सिटी में कितने शहर कितने लोग आ सकते हैं, नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस। उसी को फाइनेंसिंग की बात कर रहा है वो, कि अगर हमारे शहर इतने अमीर होते कि वो सारी कॉस्ट कवर कर लेते तो फिर पानी फ्री में मिल जाता, लेकिन क्योंकि इतने अमीर नहीं है तो पानी लोगों से, मतलब पानी के लिए चार्जेस लोगों से लेने पड़ते हैं। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलेगा, इस नेक्स्ट पैसेज करते हैं। इसमें भी उसने पूछा है व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस, तो पैसेज पढ़ के सॉल्व करते हैं। इंडिया हैज़ ट्रेमेंडस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी। इंडिया के पास सोलर एनर्जी के लिए ट्रेमेंडस पोटेंशियल है। वी ऑल रियलाइज दैट वी हैव टू स्टॉप बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स to meet our energy needs. But certain renewable resources are still going through their cost curves and learning curves to get the required amount of output. तो उसने क्या बोला कि इंडिया के पास सोलर एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमें ये समझ आना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करने से पहले हमें रिन्यूएबल सोर्सेज पे स्विच करना होगा, और उसके लिए हमें उसकी टेक्नोलॉजी और उसका कॉस्ट दोनों को कम करना पड़ेगा। तो वी हैव टू गो थ्रू द कॉस्ट कर्व्स एंड लर्निंग कर्व्स, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी भी हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी और उसकी कॉस्ट भी कम करनी पड़ेगी, ताकि हम रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ कर पाएँ एज अ रिप्लेसमेंट फॉर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब आगे उसने क्या बोला है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्ट्रांगली कमिटेड टू इट्स टारगेट्स ऑफ रिड्यूसिंग एमिशंस बाय 33% बाय 2030। ये 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट ने 33% एमिशंस कम करने के टारगेट रखा है। एंड टुवर्ड्स दिस इट हैज़ इनिशिएटेड अ स्ट्रॉन्ग पुश टुवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी, और हमें इसी के लिए हमें गैस बेस्ड इकोनॉमी बन रहे हैं। एंड इट हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड हेविली इन रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्ट कर रही है सरकार। हाउएवर, business houses are wary of investing too heavily in renewable energy at a time when technology is not yet ready। लेकिन जो बिजनेस हाउसेज है ना, वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी है उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस हाउसेज। सरकार ने वैसे प्लान कर लिया है, लेकिन जो बिजनेसेस हैं वो नहीं कर रहे, क्योंकि उनको अभी ये सब महंगा लग रहा है। तो उसने क्या बोला इस ऑप्शन में, इंडियाज कमिटमेंट टू रिड्यूस एमिशंस बाय 33% इज अनलाइकली टू बी अचीव्ड। ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कह रहा वो। उसने क्या बोला, इंडिया शुड इम्पोर्ट गैस रादर देन इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल सोर्सेज। नहीं, ये भी नहीं पॉइंट है इसका। गेटिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू मार्केट टू सून मे बी कॉस्टली, यस, एंड इंडिया शुड पुट मोर एफर्ट्स इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस। ये नहीं कह रहा कि नेचुरल गैस एक्सप्लोर करो, वो क्या बोल रहा है कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमें करना चाहिए यूज, लेकिन अभी वो महंगा है। टू ब्रिंग इट टू मार्केट टू सून इट मे बी कॉस्टली, ये उसने बात क्लियरली बोली है। तभी बिजनेस हाउसेज नहीं इन्वेस्ट कर रहे उसमें, क्योंकि उनको महंगा लग रहा है। व्हेन द टेक्नोलॉजी इज नॉट येट रेडी एंड इट्स नॉट चीप, सो तब तक नहीं होगा जब तक ये टेक्नोलॉजी चीप नहीं हो जाती। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, गेटिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू मार्केट टू सून, मतलब बहुत जल्दी उनको मार्केट में लॉन्च कर देना, इट मे बी कॉस्टली फॉर द पीपल टू टू अडॉप्ट दैट। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चले गाइज, और ये है गाइज आपका आज का होमवर्क पैसेज। इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आपने बताना है गाइज क्या क्रिटिकल मैसेज दे रहा है पैसेज आपके। तो पैसेज कुछ ऐसे है, मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट and health in terms of consequences of unattended heaps of garbage.
which become home for flies and other vermin. However, there is another aspect that is not well understood, that is, what happens when unscientific solid waste management combines with poor drainage and dumping of untreated sewage into drains, which are meant to carry storm water during rains. Now, the result is choked drains, which are full of stagnant water breeding mosquitoes, resulting in the spread of waterborne diseases. तो गाइज क्या मैसेज दे रहा है पैसेज बताइए. ऑप्शन उसने चार दिए हैं. इन इंडिया द ड्रेनेज नेटवर्क्स आर नॉट सेपरेट फॉर सुएज एंड स्टॉर्म वाटर, ये मैसेज है. अर्बन लोकल बॉडीज डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी to deal with the problems of waste management, ये मैसेज है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज एंड सीवेज नेटवर्क्स, ये मैसेज है. या बैड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड सीवेज सिस्टम्स बाय आर म्यूनिसिपैलिटीज इज द रीजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेजेस इन आवर सिटी, ये इसका मैसेज है. तो जल्दी से पढ़िए, बताइए, और इस कमेंट सेक्शन में आपने बताना है इसी वीडियो के कि आपका सही आंसर क्या है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे और बताएंगे इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या बनना चाहिए. बट लेट अस सी आप किस माइंडसेट से ये कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हो. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. बट बिफोर वी लीव द सेशन, अगेन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि आप कैसे हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं. गाइज बड़ा सिंपल सा तरीका है, वैसे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट आपको क्या करना है गाइज, आपको बस अपने ब्राउजर पे जाना है और टाइप करना है edutap.in. आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे, जैसे ही EDUTAP edutap.in सर्च करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यू विल लैंड ऑन आवर होम पेज. और हमारे होम पेज पे ही आपको हमारे सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल दिखेंगे. आरबीआई, नबार्ड, पीएफआरडी, बाकी सब है. सबसे नीचे है आपका सी सेट कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू योर सी सेट कोर्सेज. इसमें आपको गाइस आप लाइव वर्कशॉप में अटेंड कर सकते हो अपनी सी सेट की विष्णु सर के साथ. और आपको कोर्सेज अगर ज्वाइन करने हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज है 2026 के लिए, जिसमें आपको PYQs मिलते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं. ये सिर्फ टेस्ट सीरीज है. लेकिन अगर आपको वीडियोस भी चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज, तो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी जो अभी ऑलरेडी चल रही हैं. कॉन्सेप्ट क्लासेस जो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, और बाकी सब चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ये सब तो मिलेंगे ही. तो गाइस कम जॉइन अस, वी आर ऑफरिंग फ्लैट 80% डिस्काउंट ऑन these courses and the coupon code is FEB80. So come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. तो गाइस ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेशन. अगले हफ्ते भी हम ऐसे ही सेशन लेके आते रहेंगे आपके लिए. सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. सो गाइस अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 81462 07241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So all the very best, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure your endeavors will come true. So thank you so much. Keep happy learning to all of you, and have a good day guys. Bye bye, take care, see you soon.